थोड़ा अपना नाम की प्रीतम सिंह सन नहीं कुलवीर सिंh. Kulveer Singh. कुलवीर सिंह सन नहीं पनफ्तारी ना सिख जगह तो ना जो तचिया ही ना पकड़ी के ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਯਕੀਨ ਹੈਗਾ ਰੱਬ ਦਾ ਯਕੀਨ ਜਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਬਾ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਸੀਗੀ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਤੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਅੱਛਾ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਈਸਾਈ ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇਖ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਛਕਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਖਾਣੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਇੱਕ ਦੇਖ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਮੋਚੀ ਹੈ ਇਹ ਕਮ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਨੀ ਇਹ ਗਰੀਬ ਹੈ ਇਹ ਕੱਢ ਗੁਰਬੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਲਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਪੱਕਿਆ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਹੀ ਪੂਰੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਯਾਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਲਾ ਕੀਤਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਕੱਟਿਆ ਸੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈਲਪੁਰ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਚਿੱਲਾ ਕੱਟਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬਰਕਤ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਬਾਦਤਗਾਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਰੀਖੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖਾਸ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦਾਇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕੱਦਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਬਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਤਬਲੀਗ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਪੈਂਟੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਖਾਓ ਝੂਠ ਨਾ ਕਰੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਅਤਕੜੀ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਤਕੜੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਅੱਛਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਅੱਛਾ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤਕੜੀ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਅਤਕੜੀ है माशाल्लाह देखिए यार कड़ी का मतलब की है कि ये एक अतकड़ी है कि आपने कोई गलत काम नहीं करना है ना तो ये सिख जगत की जितनी भी बातें हैं ना आप देखें कि हमारे मुसलमानों के साथ बहुत नज़दीक है और ख़ासतौर से जो रब के ऊपर यकीन है ना हमारा वो जो बाबा गुरु नानक जी ने हमें बताया वो तो बहुत ही गहराई के अंदर है ख़ासतौर से जो कड़ी पहना दी गई कि ताकि आपका हाथ रुका रहे माशाल्लाह ये वजह है इसकी इसको देख के एहसास हो कि कोई ऐसा काम नहीं करना जिसमें मज़हब भी इजाज़त और भी आपकी जो पग है इसका क्या मतलब है ये सर ये कहते हैं ना 5 कक्के हैं आपके ये थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे ये सर अगर हज़ारों लोगों में एक सरदार जी खड़ा रहे तो दूर से नज़र आ जाता है उसने पग बांधी होती है ये एक पहचान है गुरु साहब की केस वेन ये एक मोहर है अच्छा माहौल है तो ये दूर से भी सिख पहचाना जाता है कि ये सरदार जी है ये सिख है अच्छा कंगा जो होता है कंगा उसका वो केसों के लिए होता है यानी हम कंगी जो है आम प्लास्टिक वाली कंगी से या किसी और कंगी से नहीं करते अगर बाल कंगा करेंगे तो एक तो अगर आप देखें मेडिकल के लिए आते हैं लकड़ी का कंगा अगर आप करते हैं तो उससे आपको एक अच्छी सूजी मिलती है वो सेहत के लिए ठीक है लकड़ी का ठंडा होता है कंगा जो होता है तो दूसरा जो है कढ़ाई जैसे इसका मकसद है हथकड़ी तीसरा जो है किरपान होती है किरपान तोねなんかねキルパンっていうの小さな刀ですねこれが刀これを持っているんですねこれシーク教の中の一番大事ये किरपान है देखिए ये 5K जिन्हें कहते हैं ना 5K इसके अंदर है केस है अपना कड़ा है और किरपान है और कछेरा अच्छा सर कच्छा जिसे कहते हैं तो ये 5 है तो उसका ये क्या मकसद है ये किरपान जो है सर उस वक्त तो आपको पता है ना कोई कानून नहीं होता था पुराने ज़मानों में ठीक ठीक ये सर अगर किसी की बहन बेटी की इज्जत खतरे में अच्छा तो राजा महाराजा जब ड्रिंक कर लेते थे तो वो निकल जाते थे किसी आउट ऑफ कंट्रोल तो किसी की इज्जत के लिए निकल जाते उसको बचाने के लिए तो उस वक्त सब धर्म वाले सो गए उस वक्त सरदार को जाग गई है उसने किरपान जो है निकाली और बुराई के खिलाफ उसे इस्तेमाल किया तो ये उस वक्त से चली सिंबल है तो कछेरा जो है कछेरा एक तो आप अगर
अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हर टाइम आप इबादत के लिए तैयार रहते हैं। इसके साथ कपड़े जो ये नापाक नहीं रहते। अच्छा, परहेजगारी के लिए होता है। अगर इंसान है कोई दिल जज्बाती हो जाता है, मैं किसी अपनी औरत के अलावा किसी गैर औरत से सोहबत करूँ तो एक अच्छा भी आपको साथ देता है जी। कड़ी है, हथकड़ी है, ये हाथ की कड़ी और ये वहाँ की कड़ी ये है। वहाँ की कड़ी। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, बात समझ आई आपको यार। एक अच्छी जो है परहेजगारी के लिए, वो परहेजगारी के लिए एक जिस चीज़ की मज़हब में अगर आपकी अपनी बीवी है उसके लिए आप इजाज़त है, उसके लिए आप हो, लेकिन उसके अदरवाइज नहीं किसी गैर औरत के लिए आप नहीं नहीं है। तो ये भी एक एहसास पैदा करता है। पांचों चीज़ें जो भी है ना, पांचों काम, इनका कोई ना कोई मकसद है। ये मज़हब के रुकन है, कोई चीज़ खाली नहीं है, बगैर मकसद की कोई चीज़ नहीं है。非常に大事な話いっぱいしてますから、これまた後でですね、ヘルプで通訳して入れますので、माशाल्लाह हाजी बड़ा मुझे खुशी हुई। मतलब ये मैसेज चाहूँगा मैं आपका, ये नॉन मुस्लिम को भी या नॉन सिख जो हमारे मेरे असल में जितने मज़ाहिब हैं उनके साथ डायलॉग करते हैं, तो कोशिश है कि आप लोगों के अंदर की जो बात है ना उसको मैं पहुँचाना चाह रहा था कि अंदर बिलीव क्या है इंसान में, क्योंकि यकीन ही आपका जो है ना वही माशरे को दुरुस्त कर सकते हैं। तो इस माशरे को दुरुस्त करने के लिए मैंने देखा कि कॉमन चीज़ें हैं, मुसलमानों की भी ये चीज़ नहीं है, हिंदुज़म हर मज़हब में है, लेकिन उसको फॉलो करना या ना करना यहाँ पे सारी बात है। लेकिन बड़ी खुशी है कि आप उसको अभी तक 600 साल से फॉलो करते आ रहे हैं उसी मतलब पर्सनैलिटी को। और कोई आप जापान के वहाँ सिख मत के बहुत से दोस्त हैं आपके, मेरे दोस्त हैं वहाँ पे, उनको मैं मैसेज देना चाहता हूँ, अगर आप कुछ कहना चाहें तो सिख भाइयों को पंजाबी से कह दियो जो कुछ कहना चाहिए। अपने ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਤਾਰੀਖੀ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਾਂ। चलो जी मिल के कह देंगे एक मैसेज है कि बाहर के मुल्कों तुम रह रहे हो, लेकिन कोशिश तुम ये करो कि अपने मज़हब तो दूर जाने की कोशिश ना करो। वाकई बाहर के मुल्कों बहुत आज़ादी है, लेकिन जेडे गुरु साहिबान ने जो सानू पाबंदियां दित्तियां ने, केस रखना, केस नहीं कटाने, इन्हां चीज़ों का कोई नशा शराब नहीं पीनी, नशा नहीं करना, इन्हां चीज़ों तो बच के रहो। हमें बाहर के देशों जो इन्हां चीज़ों की इजाज़त है, लेकिन मज़हब सानू सिख पंथ इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। कोशिश करो कि इन्हां चीज़ों तो बच के रहो कि गुरु वाले बनो। वाह जी वाह। तो देखो जी आज सानू सिंह जी तुझे मैनू कहा कि उत्थे पंजे साहब जाना जाके दुआ करके आना, तुहाडी वजह तो मैं इत्थे अपने सिख भाइयों नाल गलबात की है, मैं इत्थे दुआ भी की है कि इत्थे पाकिस्तान में अमन कायम हो जाए। तो इन्हें दो जोड़े सिख भाइयों ने सानू गल्लां दसियां मैनू बड़ी दिल ते लगियां। ये गल्लां मैं चाहांगा तो तुहाडे उत्थे भी पहुंचण, जिन्हें भी साडी सिख जगत के अपने कुवैत टोकियो भाई भरा है उन्होंने तो इन्हों का मैसेज पहुँचे। इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश होगी कि तुहां लोगों को नाल लैके आवां नेक्स्ट टाइम मैं तुहाडे नाल आवां, मैं इत्थे ते अंदर जावां, उत्थे जाके असीं जाके जो भी है तुहाडी ग्रंथ पाठ कर सकीए, इबादत कर सकीए, तो सानू बड़ी खुशी हुई। चलो मिल के कीजिए वाहिगुरू जी दा खालसा वाहिगुरू जी दी फतेह। बड़ी खुशी हुई।